Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome all the lovely innovators. Today we will share a very inspiring story of a sister जिन्होंने sisterhood के rule book को बिल्कुल new way में define किया है. चलिए उनसे मिलते हैं. Her name is Ambreen Swale. जी Ambreen. Thank you so much for having me and giving me this opportunity to be here. कि मैं अपनी journey जो है वो मेरे जो भाई के साथ रही है वो मैं share कर सकूँ आप सबके साथ. So start with telling us his name and his age. जी तो उनका नाम है अदील सुवाले और उनकी एज जो है अब वो माशाल्लाह से 41 के हो गए हैं. Okay, so how would you like to take a start? Is he younger to you, elder to you, or कैसी initial journey रही आप लोगों की as a family unit? He is 7 years older than me. Or when I think when I was obviously in my younger period of time, I used to feel that he's perfect and he's my eldest brother. But then growing up and actually feeling the difference in in other sort of brothers and my brother, I think that was sort of shocking for me as well. But then I think I'm very lucky that I have him as my brother. क्योंकि वो बहुत केयरिंग हैं, वो बहुत अच्छे हैं. ठीक है, बहुत सी चीजें देखिए जिंदगी में मिसिंग होती हैं. एंड आई थिंक फॉर मी एंड ऑब्वियसली फॉर माय पेरेंट्स एज वेल, इट वाज अ स्ट्रगल टू एक्सेप्ट दैट ये ऐसे ही हैं और हम कुछ नहीं कर सकते. और हमें इस चीज के साथ, हमें इस फैक्ट के साथ जो है अपनी जिंदगी आगे गुजारनी है. बट अल्हम्दुलिल्लाह ही इज वेरी गुड. और क्या कहते हैं, ऑब्वियसली उनका भी एक ग्रोथ फेस रहा है. जब वो यंग थे, जाहिर सी बात है उनकी एक अलग करेक्टरिस्टिक्स थे, अलग पर्सनैलिटी थी. लेकिन अब जाहिर सी बात है he has evolved into a better person. लेकिन for us I think हमारी journey, yes it's different. It's very different to having a sort of a normal brother जो कि आपकी हर चीज को समझ सके. आपको इधर instead आपको इस जगह पे आके अपने आप को उनको समझाना पड़ता था, क्योंकि obviously he wouldn't understand. तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस था हम लोगों की जर्नी में, और हमेशा अभी तक है. तो it will stay. आपने इस communication and emotional gap को feel करना बंद किया, then you started feeling happy about it. I think this is what you are trying to say. Yes, I think that's what it is, because sometimes society put pressures on you, right? They say, oh, ye kya hai, और तुम्हें सब कुछ करना पड़ता है, और ये वो, things like that. I got to hear from a lot of people. Lekin to be honest, most of our life, we have spent overseas. So we have lived in US and we have lived in Canada. So alhamdulillah, we didn't face those harsh comments or harsh things from people around us. But still, when we moved back to Pakistan, बहुत सी चीजें ऐसी हुई कि मतलब you have to be the men of the house sometimes, and you have to do everything. So ye thoda sa ek hota hai, lekin I accepted it. I said whatever it is, he's my brother and I will train him to become a better person. Even though I'm 7 years younger than him, but it doesn't matter क्योंकि उनका जो mental age है, it's still younger than me. So I think I can develop that. This I can relate to you very well. I can relate to you very well, Amreen, because Pakistan में I suppose the understanding और the tolerance Hmm. level is not that good. ये मैं खुद भी feel करती हूँ कि इस चीज़ की awareness की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि people must बिल्कुल. understand that nothing is happening to harm them or nobody Yeah. has intentions to harm them. They need to accept the way things Allah has created, right? Exactly. And I think that is the biggest क्या बोलूं, मतलब एक Challenge, हमारी right? सोसाइटी का सबसे बड़ा एक फ्लॉ है कि हम इस चीज Oh. को एक्सेप्ट नहीं करते. और ऐसे बच्चों को, ऐसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले लोगों को हम अपनी सोसाइटी के अंदर मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करते. आप बाहर देखें, उनके लिए हर चीज अलग हो रही होती है, अलग इन अ सेंस कि उनके लिए हर चीज स्पेशल हो रही होती है, because they're considered special. हमारे यहाँ तो पता नहीं, मतलब I don't know what we think of them, but I think it's high time now कि हमें इस तरह के लोगों को भी जो है वो include करना चाहिए. And to be honest, I think these people are very special. They you know अल्लाह ने उनको ऐसा Honestly, बनाया है, तो हम कौन honestly, होते हैं कि उनको एक्सेप्ट ना करें. and honestly speaking, they have their individualized talents. You need to just groom them and Exactly. understand what is the light inside them. Is चीज की awareness create करने की on a journal level is really important, because of course I'm living in UAE and I see it all around me that there are Hmm. specialized centers for them and they are groomed in a very beautiful manner. Honestly, you're Exactly. very correct, very correct. चलिए आपकी journey की struggles तो हमने जानी as a family, as a sister. Going to the side where he is now. So, what Hmm. do you think as a family?
इमोशनल प्रेशर्स को तो हमने हैंडल किया, बट ऑन हिज एजुकेशन, ऑन हिज अपब्रिंगिंग, ऑन हिज प्रोग्रेस, हाउ यू ऑल हैव वर्क टुगेदर? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आई थिंक हमारी पूरी जो लाइफ है वो उसी के इर्द गिर्द ही बोल रही है अपने भाई के। तो जब अदील जो थे वो मेरे ख्याल से उनकी टीनेज उन्होंने हिट की थी, टर्न आई थिंक 14-15, तो मेरे फादर और मेरी मदर ने डिसाइड किया कि हम लोग यूएसए मूव हो जाएंगे, बिकॉज हमारे मामू वहाँ रहते थे और उन्होंने मैं बोला कि भाई आप लोग इधर आ जाएं, बिकॉज ये बेस्ट प्लेस है अदील की अपब्रिंगिंग के लिए। तो हम लोग जो है हम लोगों ने बहुत बड़ा एक स्टेप उठाया एंड वी मूव। तो 1997 की बात है कि हम लोग पूरी फैमिली जो है वो वहाँ मूव हुई। उन्होंने फिर माशाल्लाह वहाँ से क्या कहते हैं ग्रेड 6 या ग्रेड 7 से स्टार्ट किया था, और उन्होंने फिर वहाँ पे स्पेशल एजुकेशन में हाई स्कूल किया न्यूयॉर्क से। तो मतलब हमारे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि ऑब्वियसली ही वेंट थ्रू हिज एकेडमिक करियर, और उन्हें बहुत सी चीजें सीखी हैं। टू बी ऑनेस्ट दे taught him everything, from living obviously, separately from family, alone at home, and then going out for shopping, how to do this, how to do that। तो बहुत जो बेसिक एटिकेट्स है सोसाइटी के, जितने भी आपके यानी कि सोसाइटी में एक्सेप्ट होने के लिए आपको जो चीजें चाहिए होती हैं वो सब सिखाई गई। तो आई थिंक हमारे लिए वो बहुत बड़ा एक मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इन इटसेल्फ कि हमने अपने भाई को कुछ सिखा सके। अगर हम अभी की बात करें तो देखें अभी जो है वो हमारे मतलब दोनों पेरेंट्स जो हैं दे पास्ड अवे। तो माय ब्रदर इज एक्चुअली लिविंग इन पाकिस्तान एट द मोमेंट, और अब आप सोच सकती हैं कि मैं यहाँ हूँ और मेरे भाई वहाँ हैं, तो हाउ इंडिपेंडेंट ही वुड बी एट द मोमेंट। माशाल्लाह, या ठीक ग्रेट। है ना, माशाल्लाह से। तो वो मेरे इन लॉस के साथ रह रहे हैं माशाल्लाह से, और लेकिन वही वाली बात है कि ही इस मतलब इतने वो ग्रोन हो गए हैं कि नाउ ही नोस कि उनको मतलब क्या करना है और किस तरह अकेले रहना है। तो वो मतलब माशाल्लाह अकेले रह रहे हैं, हर हर चीज है। हाँ ठीक है, बाहर जाने से या इस तरह की चीजों से हम उनको अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें अपनी सोसाइटी पे सॉरी टू से लेकिन बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तो बाहर जाना और इन सब चीजों पे मतलब थोड़ा सा हम उनका वो रखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं कि मतलब कहीं जा नहीं रहे ये वो। लेकिन वैसे उनको हर चीज पता है, कैसे हाइजेनिक रहना है, अपने खाना किस तरह खाना है, अपने कपड़ों को किस तरह रखना है, मतलब ही इज वेरी ट्रेन्ड इन दैट। इवन अगर आप उनको शॉपिंग पे लेके जाएंगे तो he will know what to buy for himself, so he is very smart now, he's very intelligent now. What do you think, Amreen, if I asked you a very frank question? आपका बहुत honest opinion मुझे चाहिए. Moving to USA has done, yeah, like you're mentioning, like in 1997, you guys moved to US for the sake of your brother's training. So do you think he has been able to become a person that he is now just because of your family step of moving to USA? I तो क्या think it पाकिस्तान में probably ये सब नहीं हो पाता? देखिए पाकिस्तान में वो जाते थे, वो स्कूल जाते थे, रानुमा पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल था, और मेरे ख्याल से अभी भी है शायद वो। तो वो इन्हीं बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन ही है वो। उन्होंने नो डाउट उन्होंने बहुत यानी कि किया, बेसिक्स उनको समझाया, सिखाए हर चीज की। लेकिन एक होता है ना कि एक्स्ट्रा एफर्ट जो सोसाइटी में Yeah, रहने के the लिए जो चीजें confidence चाहिए that ना he हमें, needed, what he got कॉन्फिडेंस, from, yeah. एग्जैक्टली। हाँ, हाउ टू मूव अराउंड इन द सोसाइटी वो नहीं सिखाया गया, कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं थी। बस वो ये था ए फॉर एप्पल बी फॉर बनाना, दैट काइंड ऑफ एजुकेशन वाज देयर, नो डाउट, ठीक है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं था। That is not पैसों के बारे में education, कुछ that नहीं is not सिखाया। generalization, honestly. जी, बिल्कुल. ये तो मतलब वो वाली चीज थी। तो अब मेरे ख्याल से अब भी इन बच्चों के लिए जो बहुत इसेंशियल है वो ये कि आपको जिंदगी गुजारनी कैसे है, ठीक है। जो कि जाहिर सी बात है हम जैसे लोगों को नहीं होता, क्योंकि हम वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस करते रहते हैं, हमें पता चलता रहता है। लेकिन ये जो बच्चे होते हैं इनको आपको थोड़ा सा इनको आपके माइंड में डालना होता है कि देखिए ये सोसाइटी है, ये एक अच्छा बंदे के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक बुरे बंदे के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक सोसाइटी है, सोसाइटी में एक्सेप्ट होने के लिए आपको ये चीजें चाहिए, आपको ये चीजें सीखनी है। तो गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक it has contributed, but obviously all that क्या कहते हैं जो मेहनत थी, all that hard work, I think the credit goes to my mother, ठीक है। and unfortunately हमारे यूएस मूव होने के थ्री years बाद ही उनका इंतकाल हो गया था। तो उन 3 years में जितना वो कर सकी उन्होंने किया, लेकिन फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपना किया कि I was only 14 but I had to deal with all of this, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा स्टेप अप किया और बोला कि नहीं, I'll continue that journey, but keeping in mind that I was also 14, I was going through my own life challenges, I was also just stepping into the teenage, तो मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट था कि मैं किस तरह से इस जर्नी को कंटिन्यू रखूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किया। ऑब्वियसली मेरे फादर की भी उसमें थोड़ी बहुत हेल्प बाकी थी, लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ फादर्स का काम ज्यादातर बाहर जॉब करना होता है, और इतना टाइम घर पे गुजारना मुश्किल ही होता है। तो वो मदर फिगर ही होती है घर के अंदर जो ये सब कुछ कर रही होती है।
तो इट हैज, आई थिंक इट हैज वेरी वेल कंट्रीब्यूटेड, मतलब वो कॉन्फिडेंस जो मेरे भाई में है अब, मेरे ख्याल से उसका बहुत बड़ा रीजन ये है। और टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, अभी भी अगर आप उससे बात करेंगी ना, तो वो आपसे 10 टाइम्स पूछेंगे हम वापस कब जा रही हो ऐसे। दिस इज हाउ मच he has loved his life there. Because So the confidence factor that every human being needs in his life, maybe he got it from there. या एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्योंकि हम देखिए हम उनको ट्रेन कर सकते हैं, हम उनको अपनी सोसाइटी के बारे में बता सकते हैं, अपनी सोसाइटी के प्रेशर्स के बारे में बता सकते हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो शायद हम उनके अंदर इन्फ्यूज नहीं कर सकते। That only come with experimentation, और इस experimentation से शायद हमारी सोसाइटी इस किस्म की ट्रेनिंग से अभी थोड़ा दूर है, ये मैं मानती हूँ। दूर है। बिल्कुल बिल्कुल मैं इस चीज़ को मानती हूँ। इनफैक्ट फॉर एनी किड और एनी चाइल्ड हु वांट और इंस्पायर्स टू डू समथिंग न्यू, हमारा माइंडसेट थोड़ा ऐसा है कि बीइंग पेरेंट्स भी हम उनको शायद मना करते हैं कि यार इस हाँ बिल्कुल। एक्सपेरिमेंटल चीज़ में मत जाओ, कहीं तुम्हारे लिए कोई डेंजर ना हो, कहीं तुम कहीं फंस ना जाओ, शायद सोसाइटी तुम पर तुम एक लाफिंग हम्म। फैक्टर ना बना ले। ऑनेस्टली ये रूल, दिस रूल इज अप्लाइड टू एवरीबडी। आई नो जी थोड़ा सेट ऑफ माइंड सेट का थोड़ा सा डिफरेंस आता है ऑनेस्टली। चलिए अमरीन, आपकी एक बहुत 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 प्यारी बात जो मुझे लगी कि आपने अपने मदर के फुटस्टेप को फॉलो किया और उनकी जर्नी, उनकी एम, उनके सेट ऑफ रूल्स को अपने दिमाग में रखा कि मुझे उनकी जर्नी में आगे बढ़ना है। और अल्हम्दुलिल्लाह योर ब्रदर इज लिविंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ really away from you, and हम्म। I agree you are a very proud sister today। और आप उनकी जर्नी हमसे शेयर करने आई सिर्फ इसीलिए क्योंकि you have the confidence that your brother is an independent human being now because of the struggles as a family आपने काम किया आप लोगों ने और उनको एक बहुत ही अच्छी लाइफ दी। तो आप क्या जी मैसेज देना चाहेंगी सबको कि एवरी यूनिट ऑफ द फैमिली कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है टूवर्ड्स द, ये मेरा आपसे लास्ट मैसेज ही होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि एक मदर या एक सिस्टर या एक फादर कुछ नहीं कर सकता। एज अ फैमिली यू हैव टू वर्क हार्ड एंड अचीव समथिंग। आई थिंक सबसे बड़ी चीज एक्सेप्टेंस है। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए आपने हमने अपनी सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस लानी है, उनका मजाक नहीं उड़ाना। ठीक है, उनको एक सेंटर ऑफ वो नहीं बनाना कि भाई मतलब ये हम बस इस बंदे का हमने मजाक उड़ाना है। और मुंह मुड़ के बिकॉज देखना, स्टेयर करना, प्लीज इस चीज एग्जैक्टली इस चीज की ट्रेनिंग ह्यूमिलिएट की कोई करना। जरूरत नहीं है। ये चीज आपको अपने अंदर डालनी है, आपके बिल्कुल बच्चों के अंदर नेचुरली आपको वो दिखेगी। बिल्कुल, इवन आपके आपके अपने जो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो नॉर्मल हैं, तो आपने उनको सिखाना है कि देखो सोसाइटी में ऐसे लोग भी होते हैं, हमें उनको रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो एक्सेप्टेंस है, सेकंड ऑब्वियसली रिस्पेक्ट है। ठीक है, डजंट मैटर कि वो बंदा कैसा है कैसा नहीं है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और रिस्पेक्ट भी देनी है। क्योंकि जब हम पाकिस्तान मूव हुए थे ना, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, लेकिन जब हम पाकिस्तान मूव हुए थे और हमने जब उसको नॉर्मल स्कूल में डाला, तो यू वोंट बिलीव कि उसके साथ क्या होता था। ठीक है, जब वो स्कूल से आता था उसकी यूनिफॉर्म देखने वाली होती थी, क्योंकि बच्चों ने उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म पे चीजें लिखी हुई होती थी, गंदे गंदे रिमार्क्स लिखे हुए होते थे। तो ये तो टॉलरेंस लेवल है। तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चों को वो तरबियत दी ही नहीं गई है, उन बच्चों को सिखाया ही नहीं गया है कि ऐसे भी बच्चे स्कूल में होते हैं। क्योंकि वो मेरा भाई न्यूयॉर्क में स्पेशल एजुकेशन ले रहा था, मगर नॉर्मल स्कूल में ले रहा था। ठीक है, तो व्हाई नॉट कि हम पाकिस्तान में से बच्चों को एक्सेप्ट करें, क्योंकि उसको कोई डाउन सिंड्रोम नहीं है, ही इज जस्ट इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, दैट्स इट। सो व्हाट दैट मींस एग्जैक्टली इज कि उसका माइंड जो उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो स्लो है। तो इफ ही इज 40 राइट नाउ, ठीक है, तो उसका जो ब्रेन अभी फंक्शन करता है 15 या 16 इयर्स ओल्ड की तरह करता है। Yeah, और these are the आज के मेरा attributes. Yeah, these are the attributes, for any एग्जैक्टली medical examination there are stuff like that, so it is an या attribute that goes inside the profile। ये तो सबको समझने की एग्जैक्टली जरूरत है। जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। तो आपको ये चीज हम लोगों को अपनी सोसाइटी के अंदर मतलब हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। मतलब मैं अपने बेटे को, अब माशाल्लाह वो समझदार हो गया है, तो मैं उसको समझाती हूँ कि देखो तुम्हारे मामू के साथ जो है ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमें उनको ऐसे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, हम खुद मजाक उड़ाते हैं उसका, लेकिन उसकी उसकी उस हालत में नहीं, लेकिन उसकी उन बातों पे जब वो क्यूट क्यूट बातें कर जाता है, या वो आउट ऑफ द ब्लू कोई बात कर जाता है, तो वी जस्ट स्टार्ट लाफिंग कि तुमने कहाँ से बात की। तो मतलब वो वाली चीजें होती हैं। लेकिन आई थिंक बहुत 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 हमारी सोसाइटी को जो है ना इस चीज में करना चाहिए, क्योंकि हम तो देखें हमारी सोसाइटी जो 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 मिल जाए बस उसका मजाक उड़ाना होता है। ठीक है या ना, हम लोगों frankly के अंदर ये चीज है। speaking, ये एग्जैक्टली प्लीज डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करने की और उन्हें रिस्पेक्ट करने की बिल्कुल हैबिट डेवलप कीजिए। once a mother, I बिल्कुल। would say a mother, once a mother has acquired this,
the children will learn it automatically from her. क्योंकि यहाँ mothers की बिल्कुल. responsibility बहुत ज़्यादा आती है. I would not blame fathers. मैंने कभी किसी आदमी हम्म. को ऐसा करते हुए नहीं देखा. Trust me. So और बिल्कुल. upbringing में शायद हाथ ही mother का 70% तो माफी होता होता ही है. है. So really बिल्कुल होता mothers है. need to understand कि हमें individual differences को, it's not about special people or people of determination, it's about any differences. अगर कोई एग्जैक्टली. बच्ची छोटा हेयर कट रखना चाहती है, अगर कोई बच्चा लंबे बाल रखना चाहता है, accept it and teach your kids to accept it too instead of laughing at the other kids. Please, मेरा तो आज एग्जैक्टली. की conversation से यही message होगा सब लोगों के लिए. Thank you, Amreen. Thank you very much for joining us. It was really nice. It was inspirational, and I learned a lot of things from you. Trust me, in this interview, you have said, you have come up with such bold things, but in such a nicer way. Thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you so much. Inshallah, we'll be meeting you again for more inspirational talk. Thank you. Thank you.